میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ڈنگر پنا ہے، بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، تکبر ہے، مزاج ہے، اخلاق نہیں ہے، فضول کا چوڑا ہوا ہے، فضول کا وہ سمجھتا ہے، لیکن ایک لیول پر وہ غلاظت دیکھنے کے بعد بھی ایک آ جاتا ہے اندر کے نہیں یار، گیو ہم سم ٹائم، تھوڑی ٹھوکر کھائے گا، تھوڑا ذلیل ہوگا، تھوڑا مار کھائے گا، معاشرے کے اندر 4-6 لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، انسان بن جائے. ابھی وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا. تو ایک لیول پر ایک تربیت والا بھی پرسپیکٹیو آ جاتا ہے جو باپ والا ہونا چاہیے قوم کے لیے، اور ایک جگہ پر وہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ یہاں بھنڈ مار رہا ہے، غلطی کر رہا ہے. کچھ لوگ نہیں، معاشرے کے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک حالت میں جب دیکھ لیتے ہیں نا، ان کا فرسٹ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جیسا بھی، اس کے بعد وہ قیامت تک اپنا اوپینین نہیں چینج کرتے آپ کے بارے میں، اور اسی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی پہ مارتے ہیں آپ کو. اس لیے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ زبان کو اور اپنی باتوں کو دیکھ کے کرو، کیونکہ ایک پارٹی تو پہلے ہی انسیکیور ہے، کمپیریزن والی ہے، مارے گی، ذلیل کرے گی، ریگارڈ نہیں دے گی، رسپیکٹ نہیں کرے گی. دوسری پارٹی نے ایک بار جو تمہیں دیکھ لیا نا جس حالت، تم سونے کے بھی آ جاؤ گے نا، اور دودھ سے دھل کے بھی آ جاؤ گے، اور آب زمزم سے بھی دھل جاؤ گے، وہ کبھی بھی تمہیں وہ پوزیشن نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مائنڈ سے گرا چکے ہو. یہ بھی بڑا نیگیٹو معاشرے کا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ بھائی کل کو غلطیاں تھیں یا کمپلیٹ نہیں تھا، آج ہو گئے، اب سیکھ گیا. کل وہ امیروں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا جانتا تھا، آج سیکھ گیا. کل وہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں جانتا تھا، آج سیکھ گیا. کل وہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں جانتا تھا، آج سیکھ گیا. کل اسے گھر چلانا نہیں آتا تھا، آج سیکھ گئی ہے وہ. کل اسے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی، آج سیکھ گیا ہے وہ. کل اسے فیشن کا سینس نہیں تھا، آج وہ سیکھ گئی ہے. کل اسے انگریزی نہیں آتی تھی، آج سیکھ گئی ہے وہ. کل اس کو جو ہے تمہارے یہ ایکسنٹ نہیں آتے تھے، آج سیکھ گئی ہے، آج سیکھ گیا. کل اس کو یہ ہائی فائی گاڑیوں کا نہیں پتا تھا، آج سیکھ گیا وہ. کل تمہاری V8 پراڈوز اور یہ ریووز اور یہ گارڈز اور یہ بندوقیں اور یہ گنز اور یہ جو تمہارا ٹیک ہے، یہ جو تمہارا کاسمیٹک فیبریکیٹڈ ٹیک ہے، آج سیکھ گیا وہ. کمزور حالت کے بھائی کل اس کے پاس نہیں تھی اچھی سواریاں، آج سمجھ گیا وہ سیوک مرسیڈیز BMW کیا ہوتی. موقع تو دو آپ اگلے کو. آپ تو ایسے بھائی اگر کمزوری کی حالت میں دیکھا ہے موقع دو. کل اسے نہیں عربی آتی تھی، سیکھ جائے گا وہ. کل اسے نہیں قرآن پڑھنے آتا تھا، سیکھ جائے گا وہ. اگر مفہوم بھی اس کا کمزور ہے، وقت دو، سیکھ جائے گا وہ. موقع کیوں نہیں دیتے ہو اگلوں کو؟ یہ سوسائٹی کے وہ ٹاکسک تیزابی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اور نفرت کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کہ بھئی اس کو کیوں مل گیا. ایک وہ ہوتے ہیں جو جس کمزوری کی حالت میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ساری زندگی قبر میں ہونا چاہیے اس کو. اور تم لوگ یہاں پر یہ باتیں کرتے ہو کہ اگلا کیوں مار رہا ہے، اگلا کیوں لحاظ نہیں کر رہا ہے، اگلا کیوں انقلاب کی باتیں نہیں کرتا. بھائی نہیں کر سکتے اگلے. وہ معاشرے نہیں دنیا پہ راج کر سکتے جہاں پر ابلیس کا آسمانوں والا کمپیریزن ہوگا، اور اس کمپیریزن کے بعد تکبر ہوگا، اور اس تکبر کے بعد ابا واستکبرہ ہوگا، اور اس ابا واستکبرہ کے بعد اللہ کو چیلنج ہوگا، پھر اللہ پر فتویٰ ہوگا کہ اللہ نے گمراہ کیا، قال ربی بما غویتنی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اس نے تحقیر کر دی. یہ نیگیٹیوٹی کمپیریزن کی لوگوں سے ملانے والی اور انسیکیورٹی دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. یہ کمپیریزن کرنے والی دشمنوں کو دوست بنا دیتی ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. یہ کمپیئر کرنے والی انسیکیورٹی اور جج کرنے والا جو یہ مرض ہے، یہ کتنے لوگوں کو آپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا، آپ کی سوچ اس یہ کتنی دنیا کو آپ سے آف کرا دے گا. آپ سوچ لیں کتنے لوگوں کا یہ روحانی قتل کر دیتا ہے. لوگ ملے مجھے بھی زندگی میں، 41 سال میری عمر ہے، لوگ ملے ہیں مجھے، مگر واللہ معاشرے کے اندر I have not seen that potential. جو اگلے کو موقع دیں یار آگے آنے کا، موقع دیں سدھرنے کا، موقع دیں. آپ کو کیا پتا کہ کتنے بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت لوگ تھے، میلٹ ہو گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ میلٹ ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ میلٹ ہو گئے. پھر اس چینج ہونے کے بعد بھی کتنی غلطیاں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دی. جنگ حنین پہ غلطی ہو گئی صحابہ سے، پھر معاف کر دی. جنگ احد پہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، پھر معاف کر دی. صحابیات تھی، ان سے کچھ مسائل ہوتے، ان کو بھی آپ اچھا سبق دیتے، بھئی جان دو، وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. لوگوں کو آگے آنے دو، لوگوں کو. تو ایسے معاشرے میں انقلاب کے اندر جو اب پھنسے ہوئے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں جی پبلک اوپینین کم کیا کریں. تو بھائی اب جو بات کروں گا نا اسی پر اختتام ہے کہ بھائی اگر ایسے معاشرے میں اور ہر معاشرے میں سر اٹھانے کی ایک پرائس ہے. بیچارہ بننا ہے، بیچارہ بن کے جینا ہے، لوگوں کے تھلے لگنا ہے، کسی سردار کی غلامی کر کے جینا ہے،
भाई आपको दीन में भी ऐसे सरदार मिलेंगे, दुनिया में भी ऐसे सरदार मिलेंगे भाई, आप थल्ले हो ना तो आप कबूल हो। आप सर उठाओगे ना, नफ्स और शैतान पुश करेगा सोसाइटी को, इसको मारो। कभी कभी मैं एक वक्त में अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछता था, यार ये वाली गलती तो 1000 लोगों ने की है, मगर मुझे इतना गंदा तरीके से जो रिस्पॉन्स मिलता है, इतना बुग़्ज़ मेरे खिलाफ जो आता है, उसकी वजह क्या है? ये मैं सवाल करता था, आज भी करता हूँ। मैं अपनी बहन से करता हूँ, अपने राइट लेफ्ट लोगों से करता हूँ, मैं अपने बाजुओं से करता हूँ, मिदरार की टीम से करता हूँ कि यार बहुत लोगों के अंदर कमी है, लेकिन जिस तरह मेरी कमी के ऊपर कोई मारने आता है ना, लिहाज भी नहीं करता भाई। क्योंकि इनकलाबी आदमी के पीछे, सर उठा के जीने वाले आदमी के पीछे, और जो अल्लाह के रास्ते पे बुला रहा हो, और जो अल्लाह की जो है वो सल्तनत बनाने की बात कर रहा हो, उसके खिलाफ नॉर्मल इब्लीस नहीं आता। उसके खिलाफ लोगों को वो हसद, बुग़्ज़ और हिक़्द और वो जो किड़ वाला जो है ना, वो नॉर्मल नहीं आता। जो आदमी आज पाकिस्तान को भी सुधारने की कोशिश कर रहा है ना, उसके पीछे नॉर्मल शैतान नहीं आता होगा। जिस लेवल का उसको मारने आता होगा ना, वो उस लेवल का बुग़्ज़ होगा जो आसमानों से लेके ज़मीन। इब्लीस ने जब अल्लाह के नबी का इनकार किया, आदम अलैहिस्सलाम का, आसमानों पर, तो वो काला हो गया अंदर से। फिर वो काला होता गया, वो इतना काला हो चुका है उसका दिल कि वो दुनिया के सारे नरम दिलों को काला करने का ना हजारों पीएचडीओं का इमाम है। वो उसे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करनी आती है। इब्लीस बाप है इस टाइम पर लोगों में मनफियत क्रिएट करने। इब्लीस बाप है लोगों के अंदर जो ना जहर डालने। इब्लीस एक पूरी किताब है, एक कान है, एक गंदा तरीन बाप है लोगों को मनफी करने का, क्योंकि वो सबसे बड़ा मनफी वो है। अगर वो माफी मांग लेता आसमानों में, एक्सेप्ट कर लेता, उसका दिल पाक साफ होके मुनव्वर होके रोशन हो जाता। इब्लीस दुनिया की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है नेगेटिविटी की। इब्लीस इतना काला है अंदर से, इतना पत्थर दिल है वो, इस टाइम पर आप सोच नहीं सकते जितनी और उस इतना काला है कि वो सबसे बड़ी मिठास लाता है गले को मारने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा काला है अंदर से, और वो सबसे गलीज तरीन मखलूक है अल्लाह की इस टाइम पर। और अल्लाह वाले जो ना, तो उनके दिल जो है ना, वो तो रोशन, चिट्टे, गोरे और अंदर से मुलायम है, वो रेशम की तरह, रुई की तरह नरम दिल होते हैं मुसलमानों के। तो ये जो सख्तियां दिलों के अंदर है ना, ये इब्लीस का ये पंच है इंसान के दिल के ऊपर। तो सोचें, जब इब्लीस किसी पॉजिटिव आदमी के तरफ, जो फितरतन अल्लाह की तरफ से एक हसीन इंसान होता है ना, अंदर से प्यारा इंसान होता है, पॉजिटिव इंसान, उसको इतनी चुभन होती है ना इब्लीस को इससे कि आप सोच नहीं सकते। वो लाता है, फिर ऐसे ऐसे शैतान खड़े करता है ना उस आदमी के खिलाफ, मारो इसको। और जितना एक मासूम इंसान को कत्ल करने का मजा इब्लीस को आता है ना, आप सोच नहीं सकते। उसकी जिंदगी का, उसका आबे हयात है ये। इब्लीस की जिंदगी का आबे हयात है एक मासूम इंसान का गला घोंटना। और जब एक मासूम इंसान फिरौन बनता है, या एक मासूम इंसान जब वही कालक अपनाता है जो इब्लीस के साथ हुई है ना, उसके इब्लीस अपने तख्त पे उस टाइम पे नाचता होगा। अब आया ये मेरी लाइन के ऊपर, क्योंकि मैं भी पहले बड़ा आसमानों पर मासूम था, अल्लाह ने मेरे साथ ज्यादती की। मैं इनको दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ होगी ना, तुम फरिश्ते बन के दिखाओ आगे से। ये रहमान वालों का चैलेंज है, ये है रहमान वालों का चैलेंज, कि वो इस दुनिया की नेगेटिविटी के बाद भी ना आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले, जो था रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैंने गलती कर दी, सुभान अल्लाह, व इन लम तगफिर लना व तरहमना, तूने अगर माफ नहीं किया ना अल्लाह, मैं खसारे में चला जाऊं। That's the prophetic tradition। ये हैं हम, ये है इब्ने आदम, ये करना है हमने। ये है जलील करना, मनफियत दिखाना, हकारत से देखना, तकब्बुर करना, चैलेंज करना, बड़े बोल बोलना, जलील करना, हकीर करना। ये है आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जगह देना। नबियों की सुन्नत है वो जगह देते थे लोगों को, दुश्मनों को भी जगह दे दी उन्होंने। ये बनना चाहता है पाकिस्तानी माशरा, ये बनना चाहते हैं, ये लीडर्स क्रिएट करेंगे जो दुश्मन में भी हक होगा तो कबूल कर लेना चाहिए। ये मुसलमानों का ही हाल होना चाहिए। तुम्हारे पास अगर है कबूल करते हैं यार। अगर आज मगरिब ने कामयाबी हासिल की है, ज़र्फ के साथ कबूल करनी चाहिए। मैं मानते हैं भाई तुमने हराया हमें, मानते हैं तुमने हमें मिट्टी चटाई है भाई ज़र्फ के साथ, लेकिन मैं अपना ज़र्फ रखते हुए तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। मैं मानता हूं तुम्हारी तरक्की, कोई छोटा आदमी थोड़ी। कल हमारा राज था, आज तुम्हारा राज है, कल फिर हमारा राज आ सकता है। घर में आके मेहनत करूंगा, मैं उसकी टांगे तो मैं काफिर की टांगे क्यों खींचूंगा? मैं
काफिर के साथ डर्टी पॉलिटिक्स क्यों करूंगा? मैं काफिर को क्यों जलील करूंगा? मैं उसे पॉजिटिव कंपटीशन में मारूंगा भाई कि पॉजिटिविटी के इमामत तो हमारे पास है, मुस्बत ख्याली तो हमारे पास है। तू तो अल्लाह का मुनकर है, तेरे अंदर तो मनफियत भरी पड़ी होगी। मेरे पास सारी इसबाब मुस्बत है, मैं दुनिया की सबसे पॉजिटिव पावर के साथ खड़ा हूं और वो अल्लाह है। लेकिन माशरे के अंदर ये इस्लाम का नाम लेने वालों का भी आप हाल देख लें यार। कोई आदमी, मैं आप बताता हूं ना, कोई आदमी इनके सिस्टम से बाहर आ जाए ना, चैलेंज हो जाएंगे, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल मदरसे के अंदर एक ट्रेडिशनल आलिम बन रहा होगा, वो उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी। एक बाहर से आके जब इल्म पढ़ता है, एक बाहर से आदमी आके जब बागडोर संभालता है, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूं, आएगा आपको हार्ड टाइम। नफ्स तो वहां भी लगा हुआ है, इब्लीस तो इल्म वाले के साथ भी लगा हुआ है और दुनिया वाले के साथ भी लगा। आप किसी मार्केट में बैठे हैं, आपका जद्दी पुश्ती काम है, आप बिजनेस कर रहे हैं किसी मंडी के अंदर, एक नया न्यू कमर आएगा, मैं देखता हूं कितना ज़र्फ है ये कहने का जी आए, पॉजिटिव कंपटीशन को हम अलाउ करते हैं। अल्लाह कहता है पॉजिटिविटी का तो मुकाबला सुन्नत है, दीन है, इबादत है। साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम वल जन्नह, अल्लाह कहता है साबिकू। अब साबिकू अरबी में बाब मफाला है, मुसाबकत, बाब मफाला, साबिकू हुक्म दे रहा है, मुकाबला करो एक दूसरे से आगे बढ़ने का नेकियों के अंदर। भाई आप इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो पहले ही 4 चांद लगा रहा हूँ, आप आएंगे हमें खुशी होगी। मेरे इदारे के मुकाबले में लोग आएंगे, मैं तो कहता हूँ भैया मेरे कत्ल करने के ऊपर अगर इंकलाब खड़ा हो जाता है तो इससे बड़ा ज़र्फ, इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि हमें मारने के अंदर तुम्हें इल्म पढ़ना पड़ जाए। ज़र्फ दिखाना चाहिए हमें कि भाई ले लो यार, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, लेकिन मोमिन बेवकूफ नहीं होता, बेवकूफ भी नहीं होता, प्लेड आउट भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ऊंचा ज़र्फ रखता है भाई कि मैं अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता तुम्हारे साथ, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू कंपेयर माय सेल्फ। ये मैं चाहता हूँ हमारे कौम के लोगों की ये माइंडसेट, यार मैं गनी हूँ भाई कि आपके पास कुछ भी हो, मुझे अल्लाह की कसम खुशी है आपके लिए। मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह आपके घरों की हिफाजत करे। आपने हमें घरों से निकाल दिया है, हम दुआएं करते हैं आपके लिए, वो मसले की बात। दिल दुखता है, दर्द अपनी जगह, आपने हमें जलील किया। मैं अपने दुश्मनों को आज यहाँ कहता हूँ, यार तुमने म्यार से गिर के क्या कुछ नहीं किया मेरे खिलाफ। इस स्माइल का तुम क्या करोगे जिससे तुम तबाह हो सकते हो? ये स्माइल तुम कैसे छीनोगे? ये सुकून तुम कैसे छीनोगे कि यार मेरे माइंड में तुम इतने बड़े ही नहीं थे कभी, इतना मैंने तुम्हें वो मकाम ही नहीं दिया अपने माइंड में कि तुम्हारी वजह से मेरी ड्राइव रुक जाती। ये मेरा वार है तुम्हारे खिलाफ कि तुम इतने बड़े कभी बन ही नहीं सके। हाँ, मैं एक वक्त में तुम्हारे अंदर फंसा हुआ था, हाँ एक वक्त में हम उन गलियों में तुम्हारे साथ फंसे हुए थे, वो वक्त चला गया भैया, निकल गया वक्त, तुम भी कहीं पहुंच गए, अल्लाह हमें भी कहीं ले गया। अल्लाह इस मकाम को रखता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, नेमत है उसकी, ये आजमाइश भी है। ये बातें कहाँ चली गई माशरे की, कहाँ चली? Where has this all gone in our society? Why are we comparing others? तुझे कम दिया अल्लाह ने क्या? कम दिया क्या अल्लाह ने तुम लोग? Why are you always comparing yourself with the world? Why? ये कितनी इंसल्ट है अपनी, कितना मतलब आप अपने आप, ये जुमला मेरी कौम को कहना चाहिए, मेरे लोगों को कहना, यार ये मेरे स्टैंडर्ड से गिरी, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे इनर लेजेंड के खिलाफ है, ये मेरे इंटरनल लेजेंड के खिलाफ है, ये मेरे अंदर के लेजेंड के खिलाफ है कि यार मैं मुकाबला नहीं कर सकता आपसे, मैं मुकाबला करना ही नहीं चाहता आपसे। मैं नेगेटिविटी का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिविटी में मुकाबला करूंगा, मैं पॉजिटिविटी में मुकाबला करूंगा, मैं नेगेटिविटी का मुकाबला नहीं करूंगा आपके साथ जब आप बहुत ज्यादा गले तक आ जाएंगे। बट इट्स अगेंस्ट माई इनर लेजेंड, यू नो, इट्स अगेंस्ट माई इनर मॉरल्स एंड इट्स अगेंस्ट माई इनर वैल्यूज कि मैं आपके लेवल पर आपसे, मतलब मैंने आपसे नफरत नहीं कर सकता। मारा है आपने, आप मार रहे हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे इन हालात से बाहर निकाले और मेरी आपसे जान छुड़ाए।